about hypothalamus as an endocrine gland. I would like to start off my discussion with few questions. A option is oxytocin, B option is prolactin, C option is ACTH, D option is melanocyte stimulating hormone, E option is prolactin and MSH, and F option is none of these. And first statement we are having is the hormone produced by hypothalamus. So यहाँ पे keyword है produced by, and the best response to this question is alpha. Oxytocin is basically produced by the hypothalamus, and yes, it's stored and released from the posterior pituitary. Another statement, hypothalamus inhibits production of. So hypothalamus basically it inhibits the production of prolactin and the melanocyte stimulating hormone. It inhibits the production of prolactin from the anterior pituitary and production of MSH from the posterior pituitary. So best response to this question would be E. Another statement, hypothalamus stimulates production of. So hypothalamus basically this stimulates the production of the ACTH from the anterior pituitary. Another statement, which hormone of hypothalamus acts on median pituitary? So you've seen here that out of all these hormones, not even a single hormone is acting on the median pituitary, not even the MSH, because MSH तो खुद से median pituitary का hormone है. So best response to this question would be F, that is none of these. And now let's start off our discussion with the hypothalamus. Let's talk about its introduction first. So first and foremost thing, hypothalamus basically is a part of the forebrain, right, where many sensory stimuli of nervous system are converted into hormonal responses. So basically hypothalamus forebrain का part है और इस पार्ट में डिफरेंट सेंसरी स्टिमुलाई को हार्मोन प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया जाता है या हार्मोनल रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट किया जाता है. सो यू कैन सी हियर दैट द सेंसरी स्टिमुलाई दे आर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द हार्मोनल रिस्पॉन्सेज हियर. एंड यू सीन हियर its hormones are considered as neurosecretions. तो हम इसके hormones को फिर क्या कहते हैं? They are neurosecretions. Basically they are synthesized by the neurons but still they are secreted into the blood. So these are neurosecretions, right? So हम क्यों कह रहे हैं इनको neurosecretions? Because they are being produced from the neurons you seen here. And there are three major types of the neurosecretions. First of all, we are having the trophic factors. Secondly, we are having the inhibiting factors, and thirdly, we are having the simple hormones. So hypothalamus जो hormones बनाता है या जो secretions बनाता है उन्हें हम neurosecretions कहते हैं. और neurosecretions को हम तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास trophic factors हैं, secondly inhibiting factors हैं, और thirdly simple hormones हैं. Trophic factors basically वो factors हैं जिन्होंने इन टर्न आगे चल के किसी और हार्मोन किसी और ग्लैंड की सिक्रेशन को अफेक्ट करना है. इनहिबिटिंग फैक्टर्स ने किसी और ग्लैंड की सिक्रेशन को इनहिबिट करना है. और जो सिंपल हार्मोन्स हैं बेसिकली ये स्ट्रेट हार्मोन्स हैं जिनका बॉडी में कोई ना कोई डायरेक्ट एक्शन होगा टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर. किसी दूसरे ग्लैंड की सिक्रेशन को बेसिकली ये इफेक्ट जनरली नहीं कर रहे होते सिंपल हार्मोन्स. So this was about the neurosecretions, and now let's talk about the hypothalamic hypophyseal portal system and the hypothalamic secretions. And I would like to teach this area to you with the help of this computerized photograph. Let me orient you towards this photograph. You see here in this photograph, here we have got this extent of the hypothalamus. So here we have got this hypothalamus, which is a part of the forebrain, and then this area over here, this is basically representing the pituitary. So here we have got the pituitary gland, and there are two major segments of the pituitary gland visible in this photograph. You see here we are having the anterior pituitary. So this one over here, this is the anterior pituitary, and so this yellowish portion, basically this yellowish portion is representing the anterior pituitary, while this greenish portion of the pituitary gland, this is representing the posterior pituitary. So here we are having the anterior pituitary, and here we are having the posterior pituitary. First of all, let's talk about the interaction between the hypothalamus and the anterior pituitary. So you seen here, आप देख सकते हैं कि ये एक blood vessel है जो कि hypothalamus में enter हो रही है, and it's getting splitted into the capillaries there. ये capillaries में split हो रही है. So this is an artery, right? So ये एक कह लें कि artery है जो कि hypothalamus में enter हुई, capillary network में break हुई, और उसके बाद फिर जो कैपिलरीज हैं अल्टीमेटली दे वुड मेक अप अ स्मॉल वेन्यूल, राइट. सो यू सीन हियर जो वेन्यूल है इट वुड अल्टीमेटली एंटर इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहां जाके इट वुड स्प्लिट इनटू अनदर कैपिलरी नेटवर्क, राइट. इट वुड स्प्लिट इनटू अनदर कैपिलरी नेटवर्क जो कि एंटीरियर. सो इसके तरफ और उसके बाद फिर जो कैपिलरी नेटवर्क के एंटीरियर पिट्यूटरी का अगेन इट्स ड्रेनिंग इनटू अ वेन. सो इसमें गौर करें कि पहले अब कह लें कि से अगर हमारे पास ये है जी hypothalamus, here we are having the anterior pituitary. तो क्या हो रहा है कि एक आर्टरी hypothalamus में एंटर हुई और इसमें कैपिलरी नेटवर्क में ब्रेक हुई, वहां से फिर
एक वेन अराइज हुई, राइट, या मल्टीपल वेन्स भी हो सकती हैं। वेन्स के जरिए जो ब्लड है वो आया एंटीरियर पिस्टरी तक, यहां पे फिर एक और कैपिलरी नेटवर्क में वो ब्रेक हुई और अल्टीमेटली इट ड्रेन इनटू अ वेन। सो ये जो सिस्टम होता है हम इसको कहते हैं ये पोर्टल सिस्टम है। बेसिकली इसमें होता ये है कि एक दफा जब जो हाइपोथैलेमिक कैपिलरीज में ब्लड चला गया तो हाइपोथैलेमस की जो डिफरेंट सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स हैं, जिनको अब हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहेंगे बिकॉज दे आर मेकिंग सिक्रीशंस, तो उनकी जो सिक्रीशंस हैं वो कैपिलरी में आ जाएंगी, हाइपोथैलेमिक कैपिलरीज में। सो हाइपोथैलेमिक कैपिलरीज के अलॉन्ग अल्टीमेटली दे वुड मेक देयर वे इनटू द एंटीरियर पिस्टरी। अब एंटीरियर पिस्टरी में जो कैपिलरी नेटवर्क है, अब उन कैपिलरीज से जाके जो हाइपोथैलेमिक सिक्रीशंस हैं वो अल्टीमेटली एंटर होंगे इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन दे वुड एक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में कई तरह के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि TSH प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ACTH प्रोड्यूस करेंगे, FSH एंड LH प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, प्रोलैक्टिन और इवन एंडोर्फिन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। सो एक वाइड रेंज है सेल्स की जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट है और वो जो सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के वो हाइपोथैलेमिक सिक्रीशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दी हाइपोथैलेमिक सिक्रीशंस वो अपनी सिक्रीशंस आ गया कह रहे हैं वो जो सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की वो अपनी सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें कि जो TSH प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो TSH प्रोड्यूस करेंगे इन रिस्पॉन्स टू अ सिक्रीशन फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, राइट। ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स ACTH प्रोड्यूस करेंगे और इसी तरह से FSH एंड LH प्रोड्यूसिंग सेल्स FSH LH प्रोड्यूस करेंगे। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स। और इस तरह से प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करेंगे और एंडोर्फिन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स जो वो एंडोर्फिन्स को प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली जो एंडोर्फिन्स हैं इनका समहाउ रोल होता है ऑन द पेन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, ये ब्रेन में कुछ पेन रिसेप्टर्स पे जाके काम करते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स की जो डिस्कशन है दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर एग्जाम। बहरहाल रिमेनिंग जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के इसको हम डिटेल से जाके आगे डिस्कस भी करेंगे। सो ये जो स्पेशल सिस्टम है डिजाइंड बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है। लेकिन और हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम का मेन काम क्या है कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उन सिक्रीशंस को ब्लड के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाना ताकि उन सिक्रीशंस के रिस्पांस में एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स फर्दर अपनी सिक्रीशंस को प्रोड्यूस कर सकें। ऑलराइट, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में है, इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है या कोई भी रिलेशन नहीं है। सो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम हैज गॉट नथिंग टू डू विद द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो सिक्रीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये रिलीज करता है दो मेजर हार्मोन्स, कौन कौन से? एक ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंडली दी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो दो हार्मोन्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सेल्स इन हार्मोन्स को खुद नहीं बनाते। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जस्ट स्टोरेज साइट है। इफ दिस इज जस्ट द स्टोरेज साइट, अब क्वेश्चन ये है फिर इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन कहां पे होती है? एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज इन द हाइपोथैलेमस। सो और तरह के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि अपनी एक्सटेंशंस को ऑल द वे भेजते हैं टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। सो यू आर हैविंग द न्यूरॉन्स देयर जो कि एक्सक्रीशन को भेज रहे हैं टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन और ADH हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस बट दे आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अलावा मीडियन पिट्यूटरी भी होता है, राइट। देयर इज अनदर सेगमेंट ऑफ द पिट्यूटरी जिसको मीडियन पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उस मीडियन पिट्यूटरी के लिए भी जो सिक्रीशंस हैं कुछ ना कुछ वो हाइपोथैलेमस से आती है। Alright, so this was about the hypothalamic hypophyseal portal system, and now let's talk more about the secretions of the hypothalamus, and I'm going to teach this stuff to you with the help of this computerized photograph. So let me orient you towards this photograph. इस photograph में हमारे पास top पे hypothalamus है and these are all secretions of the hypothalamus. Here we are having the adenohypophysis or anterior pituitary, and here we are having the neurohypophysis or the posterior pituitary, right. And then we are having the median pituitary as well, right. So here we are having the median pituitary, right. और फिर ये जो different आपको hormones नजर आ रहे हैं basically these are the hormones of the anterior pituitary, right. और ultimately finally over here we are having the target organs, different target organs, right. So अब हम categorically secretions के बारे में बात करते हैं one by one. You seen here कि hypothalamus it makes a secretion namely the gonadotropin releasing hormone. Now the gonadotropin releasing hormone it travels via hypothalamic hypophyseal portal system to the anterior pituitary. In response to this GnRH of the hypothalamus, anterior pituitary produces FSH and the LH which then make their way
to their target organ, that is gonads, right? And in response to the FSH and LH, the gonads, they produce different hormones. For example, in females, the ovaries, they are producing the estrogen and progesterone in response to this FSH and LH, while in the males, the male gonads are producing the testosterone and inhibin hormones in response to these FSH and LH. So, और ये जो secretions हैं gonads की, generally they are having negative feedback effect on the secretions of the anterior pituitary as well as on the secretions of the hypothalamus, right? और उसके बाद फिर देखिए, next we have got the corticotropin releasing hormone, या हम इसको corticotropin releasing factor भी कहते हैं. So hypothalamus produces CRH or CRF, which travels via hypothalamic hypophyseal portal system to anterior pituitary. In response to that, certain specific cells of the anterior pituitary produce ACTH. ACTH travels via blood to the adrenal cortex, which are part of the suprarenal glands, and in response to this ACTH, the adrenal cortex, it produces the cortisol. It produces the cortisol and androgens. Cortisol and the androgens, adrenal androgens, which are then having the negative feedback effect on ACTH as well as on the CRF generally. Alright, then we are having another secretion of hypothalamus. Hypothalamus is producing TRH, इसको हम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहेंगे. It then travels via hypothalamic hypophyseal portal system to anterior pituitary. In response to this hormone of hypothalamus, anterior pituitary produces TSH, and TSH is thyroid stimulating hormone. It travels via blood to the thyroid gland, in response to which thyroid gland produces T3 and T4, which are then having negative feedback effect on the TSH as well as on the TRF. अब ये जो हार्मोन्स हमने अभी पढ़े हैं, लाइक खास तौर पे वी हैव टॉक्ड अबाउट द ACTH एंड TSH, FSH, इनको हम कहते हैं बेसिकली ये ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं. दीज आर एक्चुअली ट्रॉपिक हार्मोन्स, राइट? सो इस तरह से ये जो हाइपोथैलेमस के डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो आगे दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो भी ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं. एनीवेज, फिर हाइपोथैलेमस इट प्रोड्यूसेस अनदर सिक्रीशन, द नेम ऑफ विच इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर. Prolactin inhibitory factor also travels via hypothalamic hypophyseal portal system to the anterior pituitary, right? And anterior pituitary के पास कुछ cells होते हैं जो कि prolactin produce करते हैं, लेकिन prolactin inhibitory factor वो anterior pituitary से prolactin की secretion को कम करेगा, right? So ये एक paradox है कि basically सारे के सारे कह लें कि हार्मोन्स की स्टिमुलेशन के लिए हाइपोथैलेमस से फैक्टर्स नहीं आते, बल्कि कुछ हार्मोन्स की एंटीरियर पिट्यूटरी से इनहिबिशन भी होती है, राइट? फॉर एग्जांपल जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन को कि इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, राइट? एनीवेज, प्रोलैक्टिन का जो काम होता है बाय द वे वो क्या है कि इट एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड इट प्लेज रोल इन द मिल्क प्रोडक्शन. सो मेमोरी ग्लैंड्स पे इसने काम करना है एंड इट प्लेज रोल इन द मिल्क प्रोडक्शन. ऑलराइट, and then we are having the growth hormone releasing hormone of the hypothalamus, which travels via portal system to the anterior pituitary, in response to which the anterior pituitary produces growth hormone, and growth hormone then travels to the whole body, और ultimately पूरी body में इसके different actions आते हैं. For example, liver पे इसके receptors हैं और even generalized body पे इसके receptors हैं, and it's causing growth of the generalized body. So ये डिफरेंट हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स एंड हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के डिफरेंट हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. एंड ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं, राइट, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये सारे के सारे ट्रेवल करते हैं टू द एंटीरियर पिट्यूटरी वाया द हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. सो ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए ये सारे के सारे ट्रेवल करते हैं, ऑल दीज हार्मोन्स. एंड देन वी हैव गॉट the ADH. ADH is also produced from the hypothalamus, right? But now this is not traveling via the hypothalamic hypophyseal portal system, right? ADH है ये neuronal extensions के along it would make its way to the posterior pituitary where it would get stored. Similarly, oxytocin भी neuronal extensions के along posterior pituitary तक travel करेगा और वहां पे जाके ये store हो जाएगा, and when needed so they would be released into the circulation and then ultimately they would reach their target organs traveling via blood, right? और टारगेट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं या टारगेट स्ट्रक्चर्स कौन से हैं एडीएच के? द ब्लड वेसल्स एंड द किडनी. ब्लड वेसल्स पे एडीएच ने क्या काम करना है? इट्स गोइंग टू कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द ब्लड वेसल्स, जिसके नतीजे में वेजोडाइलेशन होगी. समहाउ एडीएच प्लेज रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. हम इसको जाके आगे चल के डिटेल से डिस्कस भी करेंगे जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को इन डिटेल देखेंगे.
एंड सिमिलरली जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन भी हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होके न्यूरोनल एक्सटेंशन के जरिए ये आती है टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन इट ट्रेवल्स वाया ब्लड टू द टारगेट स्ट्रक्चर्स जो कि यूट्रस है या मेमोरी ग्लैंड्स हैं। सो मेमोरी ग्लैंड्स से मिल्क इजेक्शन काम है ऑक्सीटोसिन का, और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और उसके नतीजे में जो चाइल्ड बर्थ है उसमें इसका रोल होता है ऑक्सीटोसिन का, राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन they are not traveling via the portal system to the posterior pituitary, rather neuronal extensions all the way जा रही हैं to the posterior pituitary, लेकिन चूंकि उन न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस के अंदर है, सो इसीलिए हम कहते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड देन वी हैव गॉट another hormone of the hypothalamus which is named as the melanocyte inhibitory factor. अब जो melanocyte inhibitory factor है, it basically travels to the median pituitary, और median pituitary वैसे क्या प्रोड्यूस करता है? It is producing a hormone which is named as a melanocyte stimulating hormone, जो कि melanocytes को stimulate करके उनसे मेलानिन प्रोड्यूस करवाता है। लेकिन जो melanocyte inhibitory factor है, basically this melanocyte inhibitory factor it inhibits the median pituitary, so हम ये भी कह सकते हैं कि it inhibits the production of the melanocyte stimulating hormone from the median pituitary. सो हमने ये देखा कि हाइपोथैलेमस से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स या फैक्टर्स आते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करवाते हैं। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी की जो सिक्रीशन है प्रोलैक्टिन उसको इनहिबिट करवाएगा, और इसी तरह से जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, और मेलानोसाइट इनहिबिटरी फैक्टर ये भी एक ऐसा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि मीडियन पिट्यूटरी पे जिसका इनहिबिटरी इफेक्ट है। सो हमने दो मेजर हार्मोन्स देखे हाइपोथैलेमस के, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर एंड मेलानोसाइट इनहिबिटरी फैक्टर, जो कि इनहिबिशंस कॉज कर रहे हैं। अदरवाइज जनरली या तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं या फिर सिंपल हार्मोन्स हैं जो कि डायरेक्ट अल्टीमेटली जाके टारगेट स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हैं। So this is about the hypothalamic secretions. I hope that you have developed a good understanding of the hypothalamus. Hope to see you soon with the discussion of